Okay, good. Okay, let's start our lecture. So today we will try. I will try to complete these topics. So from previous lectures, we discussed about the entropy. So today we will discuss some basic statements of the third law of thermodynamics, and also we'll discuss the statistical treatment of entropy. So in the first part of the lecture, we will try to complete these two. And if we have, so in the next one, we will discuss about the partial molar quantities, chemical potential, and three important equation Gibbs, Duhem's, Van 't Hoff, and Clausius-Clapeyron equation. So the first one is the third law of thermodynamics. So the third law of thermodynamics can be stated in different ways. For example, this is a general statement that the entropy of a system approaches a constant value as temperature approaches absolute zero. So when we decrease the temperature of a system to absolute zero, you know that absolute zero is also called the zero of the Kelvin scale, and that is equal to minus 273.15 degrees centigrade. Okay, so this temperature is called the lowest possible temperature, and which is also called the absolute zero or zero of the Kelvin cell. And you're already aware of it that according to the Charles law, that if we increase or decrease the temperature of a gas by 1 degree, there will be increase or decrease in its original volume. And when we reach to this temperature, then there will be no gas exists, and all kind of gas will be converted into liquids. So this is called the absolute zero or zero of the Kelvin scale. So when we reach to this value, then the entropy of the system approaches a constant value, and it will become equal to zero. So the most important work done by Nernst, and we will also discuss the Nernst statement. So there is another statement which is called the Nernst-Simons statement. And in this statement, the entropy condensed state system, the entropy change associated with any condensed system undergoing a reversible isothermal process approaches zero as the temperature at which it is performance zero approaches 0 Kelvin. So for a condensed system, you know the condensed system. What is mean by condensed system? Can someone tell me about the condensed system? So what is a condensed system? What do you mean by condensed system? Are you here? Okay. Can anyone tell me what is mean by condensed system? No idea. Okay. The condensed system mean the system like liquid and solid system. So liquid and solid system, they are always considered as condensed system. Okay. So the entropy change associated with any condensed system undergoing a reversible isothermal process approaches zero as the temperature at which it is performed approaches 0 Kelvin. So the same thing, it means that if we make the temperature of the system, a condensed system, equal to 0 Kelvin, and you know that at 0 Kelvin there will be no gas exist, and that is why we are associating entropy with the condensed system. We are not talking about the gas, because gas cannot be exist at 0 Kelvin. I hope you will be clear. Okay, so this is another statement, which is the Nernst-Simons statement. But basically, the third law of thermodynamics is actually developed by the Nernst, and that is sometimes called the Nernst isotherm
the Nernst hypothesis, or we can say the Nernst statement. So this is the Nernst statement that it is impossible for any process, no matter how idealized, to reduce the entropy of the system to its absolute zero value in finite number of operations. Okay? So this statements talk about that if we have a very idealized system, अगर हमारे पास कोई सिस्टम आइडियलाइज भी हो लेकिन हम किसी सिस्टम की एंट्रोपी को यानी एब्सोल्यूट जीरो रियल सेंस में एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं ले जा सकते अगर हम इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन में कर लें फाइनाइट नंबर का तो आपको पता है कि भाई हमारे पास एक होता है फाइनाइट नंबर, एक होता है इनफाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट हमें फिक्स होता है, हमें मालूम होते हैं नॉन नंबर। तो हम अगर किसी सिस्टम की नॉन नंबर में ऑपरेशन कर ले तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल है कि हम क्या कर ले, उसकी एंट्रोपी को रिड्यूस कर ले, कहाँ तक पहुँचा दे, इसको एब्सोल्यूट जीरो तक पहुँचा दे। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? नरंस स्टेटमेंट। ठीक है। Okay, now this is the statistical treatment of entropy. This is another topic. So the statistical treatment of entropy, we can explain, we already defined the entropy in this manner. Statistical mechanics definition of entropy for a larger system. So this is the S minus S naught is equal to KB log of this omega. So this omega is called the microstate. And this KB is called the Boltzmann constant. And you already aware of this, that Boltzmann constant is always equal to 1.38 into 10 raised to the power minus 23 minus 23. Okay? Joule per Kelvin. So this is the entropy at higher, you can say at higher temperature. This is the entropy at lower temperature. So this is generally called a standard entropy because we are taking it at absolute zero. So this is the S naught. And the KB is the Boltzmann constant, and this is the omega, we can say the microstate. So in statistical mechanics, a microstate is a specific microscopic configuration of a thermodynamic system that the system may occupy with a certain probability in the course of its thermal fluctuation. So now we will discuss about the differences between the microstate and the macrostate. So if you have any idea, just tell me about this. What is the difference between the macrostate and the microstate? Micro means small and macro means large. On atomic level, micro means on atomic level. Okay, as macrostates which are observable like pressure, temperature, and microstates, velocities, and momentum, etc. So, okay, let's discuss about the differences between the macrostate and the microstate in a little more detail. So, in the next slide, I hope you will understand that. So that the macrostate and the microstate. For example, if we have 4 molecules, why is problem? I don't know. Okay, so if we have 4 molecules, these are 4 molecules. Okay. Now, if we distribute these molecules in 2 cells, for example, this is cell 1. This is cell 1. Okay, this is cell 1, and this is cell 2. Okay. Now I want to distribute these 4 molecules in these 2 cells. Okay. For example, the first probability of distribution is that 4 of the molecules are present in cell 1 and 0 molecules are present in cell 2. Why is problem है?
भाई वॉइस प्रॉब्लम को तो मैं ठीक तो नहीं कर सकता, अगर वहां से कोई नो सर, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं है किसी को है। तो ये तो अब प्रॉब्लम जो है वो तो वेबसाइट का है, इसको मैं क्या करूँ। कि कायनात कायनात समिया इलियास कायनात इनके साथ प्रॉब्लम है इसका। तो मेरे ख्याल में बाकी लोग जो है अ, उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो कोई वो तो नहीं है। आप रिफ्रेश कर ले अपना, उसको क्या करना है, लॉग आउट कर ले और दोबारा लॉग इन कर ले। मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो जाएगा फिर शायद। ठीक है ना। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं ना। फिर हमारे पास टाइम इतना नहीं होगा। तो अगर हमारे पास दो सेल्स हैं और हमारे पास चार मालिक्यूल्स हैं, तो हम इन चारों मालिक्यूलों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन दो सेल्स के अंदर। तो अब पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि चारों के चारों मालिक्यूलों को हम सेल वन में डाल दें। तो फिर जीरो प्रोबेबिलिटी होगी कि हम उसको किस में डालें, सेल टू में डालें। चारों के चारों मालिक्यूलों को अगर सेल वन में डालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जीरो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी किसमें, सेल टू में। अगर हम उसको तीन यानी क्या है प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की सेल वन में, तो वन प्रोबेबिलिटी कहाँ है, सेल टू में। अगर टू यहाँ पे है तो टू सेल टू में है। अगर वन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है तो थ्री प्रोबेबिलिटी सेल टू में है। अगर जीरो प्रोबेबिलिटी उसमें है, वन में है, तो फोर प्रोबेबिलिटी किसमें है, सेल टू में है। So the distribution ways, okay, this distribution ways is called the macrostates. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वेज हैं, ये आपके पास क्या है, दीज आर दी मैक्रोस्टेट्स। ठीक है। तो मैक्रोस्टेट्स क्या है कि आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कितने तरीकों से आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आप मतलब उसका आपका मतलब बिल्कुल ठीक है कि मैक्रो लेवल पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसकी, तो उसको हम कहते हैं this is not micro, this is macro. So one is macro state and the other one is micro state. तो ये आपको मैक्रो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, यानी द डिस्ट्रीब्यूशन वेज, दीज डिस्ट्रीब्यूशन वेज आर कॉल्ड मैक्रो स्टेट्स। अब अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे लेना चाहें, तो फिर मिसाल के तौर पे आपके पास पहला वाला जो कंडीशन है, तो उसमें सेल वन में कितने हैं आपके पास, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, यानी मिसाल के तौर पे ये वाला मालिक्यूल आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो सेल वन में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी सी डी, और सेल टू में क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप जो ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेल वन में, दैट इज द माइक्रोस्टेट लेवल। अब ये आप माइक्रोस्टेट लेवल पे करते हैं इसको, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ले ले, दूसरे पॉइंट को ले ले, थ्री और वन वाले ले ले, तो थ्री का पॉसिबिलिटी क्या है, अगर वन में ए है तो थ्री में बी सी डी होगा, अगर वन में बी है, टू में बी है, तो वन में ए सी डी होगा, इसी तरह सी और ए बी डी, और इसी तरह डी और ए बी सी। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास चार डिफरेंट वेज हैं प्रोबेबिलिटी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट द माइक्रो लेवल। तो ये आपके पास माइक्रोस्टेट्स हैं। अब ये आपके पास क्या है, माइक्रोस्टेट्स है। तो ये जो है मिसाल के तौर पे पहले वाले केस में अगर आप देख ले, तो ये वाला जो है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास है मैक्रोस्टेट, ये आपके पास मैक्रोस्टेट है ना, दिस इज द मैक्रो, ये आपके पास एम ए मैक्रोस्टेट है, ठीक है। और ये जो आपके पास ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज माइक्रोस्टेट। तो ये आपके पास एम आई आ जाएगा ना, माइक्रोस्टेट आ जाएगा एम आई। तो ये आपके पास माइक्रोस्टेट है, ये क्या है, मैक्रोस्टेट है। इसी तरह दूसरे उसमें देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, मैक्रोस्टेट है। और ये जो चार आपके पास आ रहे हैं, दीज फोर, दीज आर दी माइक्रोस्टेट। तो ये आपके पास फिर क्या बन रहा है, माइक्रोस्टेट। ये आपके पास है माइक्रोस्टेट, ठीक है ना। और अगर आप इसमें देख लें तो ये आपके पास क्या है, दीज आर दी
मैक्रोस्टेट्स, दीज आर दी मैक्रोस्टेट्स। और जो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दीज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या बात बोल रहे हैं, टू मच वॉइस फ्रॉम। ओके Samia, I don't know what is the problem, but I feel some students are getting my voice. I can't solve this problem because maybe this is a portal problem. So I already told you that just log out and then refresh your system and then log in. I hope the problem will be solved. So अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टू स्टेट्स में आपके पास जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, these are on the micro level and these are the micro states, और ये क्या है आपके पास मैक्रो स्टेट्स है। और फिर द सेम थिंग फॉर द 1 3। अब 1 3 के लिए किस तरह होगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 उस साइड पे आ जाएगा और 3 इस साइड पे आ जाएगा, और इसी तरह 0 में आ जाएगा तो 0 इधर आ जाएगा और ABCD उस साइड पे आ जाएगा। तो ये है आपके पास माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की डिफरेंसेस। आई होप you will understand the difference between the macro states and the micro states. तो सिंपल बात है कि भाई आप मैक्रो लेवल पे लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो स्टेट्स, और अगर आप माइक्रो लेवल पे लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट्स। ओके, तो इन सिंपल टर्म अभी हम थर्ड लॉ की बात करेंगे, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी करते हैं। तो इन सिंपल टर्म द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल of a pure substances approaches zero as the temperature approaches zero। जो आपके पास परफेक्ट क्रिस्टल है उसकी एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, जब आपके पास टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो। द अलाइनमेंट ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल लीव्स नो एम्बिग्विटी एज टू द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। जो आपके पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मीन्स डायरेक्शन, जो आपके पास क्रिस्टल की डायरेक्शंस हैं, तो वो आपको ये कंफ्यूज नहीं कर देता है लोकेशन और ओरिएंटेशन ऑफ ईच पार्ट। यानी जो आपके पास लोकेशन पार्टिकल का है या ओरिएंटेशन पार्टिकल का है वो बिल्कुल मतलब है उसी तरह होती है, लेकिन उसकी क्या होती है, ओरिएंटेशन में जो मोशंस है उस मोशन के अंदर क्या आता है, उस मोशन के अंदर रिडक्शन आता है। सो एज द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल इज रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स आर रिड्यूस। तो जब आप एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, जब टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो एनर्जी रिड्यूस होती है, और जब एनर्जी को रिड्यूस करते हैं तो फिर क्या होता है, वाइब्रेशन जो है वो क्या होती है, वो रिड्यूस होती है। तो जो मोशन है पार्टिकल्स का विद इन द क्रिस्टल वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा, एंड द क्रिस्टल बिकम द सेम एवरीवेयर। और आपके पास जो क्रिस्टल होगा वो सेम होगा एवरीवेयर। इसका क्या मतलब है कि नहीं, पहले तो इस तरह होता था कि भाई आपके पास जो वाइब्रेशन मोशन है उसकी वजह से जो है क्रिस्टल की एज ए होल आपकी जो शेप वो है, ज्योमेट्री है, वो सेम नहीं आती। लेकिन जब आप सॉलिड फॉर्म पे चले जाते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर पे चले जाते हैं, और जब वाइब्रेशन मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपके पास क्रिस्टल टोटली क्या बन जाता है, सेम बन जाता है एवरीवेयर। The third law provides an absolute reference point for the determination of the entropy at any temperature. So this is one of the important application of the third law of thermodynamics, that the determination of the entropy at any temperature. किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आपको आप मालूम कर सकते हैं कि उस सिस्टम की क्या है, एंट्रोपी क्या है। द एंट्रोपी ऑफ ए क्लोज सिस्टम डिटरमिन्ड relative to the 0 point, ठीक है ना, is then the absolute entropy of the system। आपके पास किसी भी सिस्टम की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी तो वो क्लोज सिस्टम के अंदर कहां से मालूम करेंगे, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि आपके पास डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस का मतलब होता है एस माइनस एस नॉट, एस माइनस एस नॉट। तो ये जो 0 पॉइंट एंट्रोपी है, 0 पॉइंट एंट्रोपी कौन सी एंट्रोपी हो सकती है, कोई बता सकता है? 0 पॉइंट एंट्रोपी कौन सी एंट्रोपी है? Anyone can tell me which is mean, what is mean by 0 point entropy? What do you mean by 0 point entropy?
Hello, are you here? What is mean by 0 point entropy? Entropy at absolute zero. Yes, you're right. Rohman, you are right. Entropy at the absolute zero. So the lowest temperature, the entropy at the lowest possible temperature, that is the absolute zero. So that is represented by S naught. So later on we will discuss this equation. S minus S naught, that is the change in entropy. तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास होता है S माइनस एस नॉट. अब S ये हम पढ़ेंगे आगे कि भाई डेल S होता है डेल S बराबर किसकी है S माइनस एस नॉट. तो ये जो आपके पास S नॉट आता है, दिस S नॉट इज दी 0 पॉइंट एंट्रोपी. तो अगर हमें किसी सब सिस्टम की 0 पॉइंट एंट्रोपी का पता हो तो हम उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मालूम कर सकते हैं. तो ये वाला जो एंट्रोपी आपके पास होगी, that will be absolute entropy. ये आपके पास क्या होगी? एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी. ठीक है ना. तो ये कह रहा है कि भाई द एंट्रोपी ऑफ a closed system determined relative to the 0 point is then the absolute entropy of the system. Mathematically, the absolute entropy of any system at zero temperature is the natural log of the number of ground states times the Boltzmann constant. ये तो अभी हमने आगे जो स्टैटिस्टिकल डिफिनीशन में क्या था उसका डिफिनेशन हुआ था स्टैटिस्टिकल में कि S इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा. ओमेगा क्या होता है? माइक्रोस्टेट्स. तो ये यहाँ से फिर हमें पता लगता है इसका. ये देखो, ये अभी क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. तो द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड बाय द नर्न्स थ्योरम इज जीरो प्रोवाइडेड दैट इज ग्राउंड स्टेट इज यूनिक बिकॉज द log of 1 is equal to 0. If the system is composed of 1 billion atoms, all alike and lie within the matrix of a perfect crystal, the number of combination of 1 billion identical things taken 1 billion at a time is this. ये बात समझ में आ रहा है ना. यानी अगर आप उसको आइडेंटिकल तस्वुर करेंगे तो अगर आपके पास 1 बिलियन एटम क्यों ना हो, आपके पास उसकी जो माइक्रोस्टेट होगी वो 1 होगी. और माइक्रोस्टेट तो आप लोगों ने पहचान लिया कि भाई माइक्रोस्टेट का मतलब ये होता है कि आप किसी सिस्टम के अंदर जो माइक्रो लेवल पे पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेज है डिफरेंट, उसको माइक्रोस्टेट कहते हैं. तो अगर आपके पास ए लाइक हो एंड दे आर लाई विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द परफेक्ट क्रिस्टल, और उसके मैट्रिक्स के अंदर आता हो ना, उसके जो डायमेंशंस के अंदर आते हो, तो आपके पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 बिलियन आइडेंटिकल थिंग्स होंगे वो 1 बिलियन एट द टाइम होंगे 1 माइक्रोस्टेट के बराबर. ठीक है ना. तो इसकी जो माइक्रोस्टेट्स होगी वो क्या होगी? 1 होगी. मिसाल के तौर पे 1 बिलियन एटम है एंड एवरी वन यू असाइन द नेम ए. अगर 1 बिलियन एटम को आपने ए का नाम दिया हुआ है, सबको ए का नाम दिया हुआ है, तो आपके पास उसके लिए माइक्रोस्टेट कितने होंगे? 1 होंगे. लेकिन अगर आप किसी 1 बिलियन एटम को आप ए नहीं देते बल्कि हर एक को डिफरेंट ओ देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर लाइक एटम्स नहीं होंगे. ठीक है. इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास कॉपर एक एलिमेंट है, तो कॉपर के एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके पास तमाम के तमाम एटम्स जो है वो कॉपर ही है. ठीक है ना. या अगर आप गोल्ड को ले लें तो गोल्ड के अंदर आपके पास तमाम के तमाम जो क्या है एटम्स है वो गोल्ड ही है. तो इसलिए आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स होंगे उसके लिए माइक्रोस्टेट क्या आएंगे? 1 आएंगे, जब तक आप कोई एडिशनल एनर्जी जो है आप अप्लाई नहीं करते. अगर आप कोई एडिशनल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कुछ जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, डिफरेंट माइक्रोस्टेट के लिए एटम्स का डिफरेंट होना सेम टेम्परेचर पे. ठीक है ना. तो डिफरेंट सेम यानी सिमिलर एटम्स के लिए माइक्रोस्टेट सेम होंगे अगर आपके पास टेम्परेचर क्या है? सेम है. लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंट है तो आपके पास जो है सिमिलर एटम्स के लिए भी माइक्रोस्टेट डिफरेंट हो सकते हैं. बात समझ में आ रहे हैं? अगर आपके पास सिमिलर वो क्या है टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, तो सेम टेम्परेचर पे आप सिमिलर एटम्स के लिए आपके पास क्या है? सिमिलर माइक्रोस्टेट होंगे. लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास सिमिलर एटम्स के लिए, इवन सिमिलर एटम के लिए भी आपके पास क्या होंगे?
डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 बिलियन एटम्स हैं और उसको हम 0 टेम्परेचर पे लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी माइक्रोस्टेट मालूम करते हैं, तो उसकी माइक्रोस्टेट क्या होगी, 1 होगी। एंड द लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब होगा कि आपके पास जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, जो नीचे अभी यहाँ बताया हुआ है कि आपके पास जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, दिस विल बी इक्वल टू 0। So the difference is 0. Hence, the initial entropy S naught can be any selected value so long as all other such calculations include that as the initial entropy. As a result, the initial entropy value of the 0 is selected 0 as used for the convenience. Convenience के लिए हम इसको 0 इसलिए लेते हैं कि आपको पता है कि भाई ये क्या है, ये आपके पास जो लोवेस्ट 0 पॉइंट एंट्रोपी है, इसको आप मिनिमम एंट्रोपी 0 पॉइंट एंट्रोपी कहते हैं ना। तो लो जो आपके पास जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे आता है, तो इसलिए आपके पास एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी यहाँ पे, 0। एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी, 0। ओके, अब हम आते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ कि जहाँ पे हमारे पास क्या हो, हम किसी सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो फोटॉन को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर पे हमारे पास जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू पे कितनी होगी। For example, suppose a system consisting of a crystal lattice with a volume V of n identical atoms. ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है, V है, और उसके अंदर जो एटम्स है, आइडेंटिकल एटम्स है, n आइडेंटिकल एटम्स। ठीक है, T is equal to 0 Kelvin, an incoming photon of length lambda and energy is striking with it. Initially there is only one accessible microstate. ठीक है, अगर आपके पास 0 केल्विन पे आपके पास है तो आपके पास तो वही 1 माइक्रोस्टेट है जो पहले हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है जो आपको ऑलरेडी क्लियर है। और ये आपके पास 0 पॉइंट एनर्जी है, 0 पॉइंट एंट्रोपी वगैरह जो है वो आपके पास 0 के बराबर। लेट एज्यूम द क्रिस्टल लेटिस एब्जॉर्ब इनकमिंग फोटॉन। अब जो ये क्रिस्टल लेटिस है वो क्या करता है, वो इनकमिंग फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो देयर इज अ यूनिक एटम इन द लेटिस दैट इंटरेक्ट, एक खास एटम होगा उसके अंदर के जो इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा एंड एब्जॉर्ब दिस फोटॉन, इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर इज एन पॉसिबल माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल बाय द सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स है वो 1 नहीं है, वो आपके पास n पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स है ना। क्यों, why there is n possible microstate in this case when a unique atom absorb the incoming photon? Can you tell me what is the reason that we have n possible microstate accessible by the system and each microstate correspond to one excited atom and the other atom remaining at ground state? ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम चुन लेते हैं कि भाई आपके पास 1 बिलियन एटम है, जितने भी है, और आप क्या करते हैं उसमें से जो फोटॉन एब्जॉर्ब करते हैं, इनकमिंग फोटॉन, वो सिर्फ एक ही एटम एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके अंदर कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट हो सकते हैं, n पॉसिबल, नंबर ऑफ एटम आपके पास n है ना, तो n पॉसिबल माइक्रोस्टेट जो है आपके पास पॉसिबल है। हमें पता तो नहीं है कि कौन सा एटम जो है वो फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी फिर किसकी लेंगे, हर एक के लिए फिर हम कहेंगे कि भाई या A करता है, B करता है, C करता है, Z करता है, कौन करता है। ठीक है ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगे वो n होंगे। बात क्लियर है आपको, इज इट क्लियर? ओके, हाँ समझ आ गई बात। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 बिलियन एटम्स है, उसमें से सिर्फ एक एटम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारे पास क्या होंगे, n होंगे। द एंट्रोपी, एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम राइजेस। अब हमारे पास क्या होगा, इस सिस्टम की जो टेम्परेचर है, इस सिस्टम की एंट्रोपी है, इस सिस्टम की एनर्जी है, वो राइज होगा एंड वी कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है, और हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इक्वेशन है, डेल एस इज इक्वल टू एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा, ओमेगा माइक्रोस्टेट है। नाउ फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स you know that the change in entropy is always equal to the change in heat with respect to temperature. ये तो ऑलरेडी आपको पता है। if you take the reversible system, तो आपके पास ये होता है कि जब आप del q by t will be equal to the change in entropy। ये आपके पास ऑलरेडी पहले आपको पता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
हमने उसको कार्नोट साइकिल के अंदर भी डिस्कस किया था इन चीज़ों को, ठीक है ना। Now, the del S is equal to S minus S naught KB log of this will be equal to this. ये क्लियर है आपको ना, इसलिए कि del S इसके बराबर है तो KB log ऑफ ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें तो पर कन्वीनियंस जो है आपके पास S नॉट जो है, जो 0 पॉइंट एनर्जी है, उसकी वैल्यू क्या है, 0। KB की वैल्यू जो है वो आपके पास बराबर है 1.38 × 10⁻23 और log ऑफ 3 × 10, ये रफली हमने जो n नंबर ऑफ पार्टिकल है इसको हमने यहाँ ये लिया हुआ है 3 × 10⁻, यानी n की वैल्यू पे ये हमने n की वैल्यू लिया है 3 × 10⁻22, ठीक है। तो ये हमने इस तरह लिया हुआ है। अब इसकी जो कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 70 × 10⁻23 जॉल पर केल्विन, 70 × 10⁻23 जॉल पर केल्विन, ठीक है। तो ये तो आपके पास आया चेंज इन एंट्रोपी, या वी कैन से द एस एब्सोल्यूट एंट्रोपी, आपके पास ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी। अब हमें ये भी पता है कि डेल क्यू बाई ये किसके बराबर है, डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू ई, ये ई के बराबर है, एनर्जी के बराबर है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एच सी बाई लेमडा के बराबर है, ठीक है। अब लेमडा जो है आप उसको लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे, लेमडा को क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर, परस करें हमारे पास जो इंसिडेंट फोटोन है उसका वेवलेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास एच की वैल्यू तो पता है आपको 6.626 × 10⁻34 जॉल सेकंड, सी की वैल्यू का आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लेमडा आपके पास बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर ले उसमें क्या नाम है मीटर में, तो -0.0 ये किसके बराबर आ जाएगा 0.00 मेरे ख्याल में इस तरह आता है 0.001 मीटर, तो ये आपके पास है 0.001 मीटर। तो ये सारे वैल्यूज जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 × 10⁻⁻23 जॉल्स, 2 × 10⁻⁻23 जॉल्स, ठीक है। अब हम रिलेट कर देते हैं इसको इसके साथ, तो द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम राइजेस बाय दिस टेम्परेचर, तो T इज इक्वल टू एनर्जी बाई डेल एस। अब एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ गई ये 0.0 क्या नाम है सॉरी ये 2 × 10⁻⁻23 जॉल्स आ गई, और आपके पास जो क्या नाम है चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू है वो आपके पास एक दिस वैल्यू 70 × 10⁻, दिस वैल्यू जॉल पर केल्विन है। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 0.2587 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर 1 सेंटीमीटर फोटोन को स्ट्राइक कर लेना एक सिस्टम को, क्लोज सिस्टम को 1 सेंटीमीटर फोटोन के साथ, तो आपके पास जो टेम्परेचर में राइज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.02587 केल्विन, ठीक है। So this can be interpreted as the average temperature of the system over the range। ये आपके पास वो रेंज है, वो रेंज क्या है, ये आपके पास इस तरह रेंज है कि यानी 0 एंट्रोपी इज greater than 0, okay, and less than 70 point this value, ये आपके पास ये कंडीशन अप्लाई किया गया है। तो आपके पास एंट्रोपी यहाँ पे 0 से क्या है ज़्यादा है, और 70 × 10⁻23 से क्या है कम है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0.02587 केल्विन, तो विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जब एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाएगा ये टेम्परेचर तो आपके पास एंट्रोपी क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है एक मेथड कि जिसके ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मालूम कर सकते हैं। तो आप किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मालूम कर सकते हैं if you know the microstats, okay, and you know the 0 point entropy. So this is all about the third law of thermodynamics. Okay. Now we will go to
We will discuss something others like the chemical potential, the partial molar properties. So because of some limitation of time, I cannot make the PowerPoint presentation. So I just take the right. Okay, just wait for a minute. Book. Yeah. I don't know. It will be maybe. I, maybe this is not so much clear. I don't know. Is it clear to you? कोई मीटिंग अरे अबाउट पेपर कोई मीटिंग हुई है कि कब होना है? ओके, मैं 11 से पेपर शुरू हो रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि 11 से पेपर शुरू होना है, लेकिन क्या नाम है उसका, आपके पेपर का मुझे पता नहीं कि पेपर कब होगा, लेकिन हमें बताया गया है कि भाई आप लोगों ने 6 तारीख तक वो जमा करवाना है, क्या नाम है अपना, पेपर्स जो हैं आपने जमा करवाने, क्वेश्चन पेपर। तो 6 तारीख तक हम पेपर जमा करेंगे और बाकी आप लोगों को मैंने जो वो दिया था, क्या नाम है, एक पूरा डिटेल दिया था ना, वो तकरीबन 27-28 क्वेश्चंस का ना, आप सबको मिला है? हाँ, उस आपको मैंने एक वो दिया था ना, क्विज जो था, क्विज, वो क्विज 27-28 क्वेश्चन का था। आखिर में मैंने कुछ चीज़ें और भी डाल दी थी ना उसमें, तो आप लोगों ने उसको तैयार करना है और इसी में से आपका वो आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। ठीक है। नहीं, असाइनमेंट पेपर असाइनमेंट न्यूमेरिकल बेस तो सेट नहीं होगा, सारे न्यूमेरिकल तो नहीं होंगे। पेपर में आपके पास आ सकता है, अ, उसमें थोड़े बहुत डिफिनीशन में दे सकता हूँ, उसमें डिरेवेशन होंगे, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ डिरेवेशन होगा, आपके हर क्वेश्चन के अंदर डिरेवेशन होंगे। ठीक है ना, और इसी तरह हर क्वेश्चन के अंदर एक न्यूमेरिकल होगा। ठीक है। हाँ, वो क्विज जो है, जो तकरीबन अभी लास्ट में मैंने आपको दिया था ना, ये क्या नाम है, 28 उसमें थे, 28 क्वेश्चन थे उसमें, वो मैंने आपको दिया था, मैं आपको फिर भी उसको भेज दूंगा दोबारा, तो उसी से आपने वो करना है। ठीक है। मेरे ख्याल में ये वाला क्विज है शायद। ओके, ये मैं ग्रुप में भेजता हूँ दोबारा, आपको ग्रुप में ये दोबारा भेजता हूँ मैं। ठीक है ना, हमारे पास टाइम नहीं है असाइनमेंट के लिए अब। क्यों टाइम नहीं है?
आपको मैं 8 क्वेश्चन दूंगा और इसमें से आपने 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना, ठीक है ना। सो 5 आउट ऑफ 8, और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 सेक्शन होंगे, मतलब सेक्शन होंगे, हाँ 2 से 3, ठीक है ना। पेपर तो बताया हुआ है उसने कि 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 जनवरी से, ठीक है ना। तो 11 जनवरी से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, और पेपर का पैटर्न तो यही है। मैं आपको सिर्फ वो भेज देता हूँ, क्या नाम है उसका, मेरा ख्याल में यही कुछ अभी मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। हाँ, ग्रुप में मैंने भेज दिया है आपको। ये तकरीबन टोटल आपके वो बन रहे हैं कुछ 28 वो हैं क्वेश्चन है ना। तो 28 क्वेश्चन में आप लोगों में इसमें से पेपर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक में कोई डेरिवेशन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक आ सकते हैं, और इसी तरह आपके पास गैस चैप्टर से बेक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, और इसी तरह एनर्जी के लिए और ये सब चीज़ें। तो ये आपके तकरीबन यानी हर क्वेश्चन के अंदर एक आपका कम से कम एक न्यूमेरिकल होगा और एक आपका there is any possibility that you give us around 50 questions and you make paper from them. What? भाई मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना अगर मैं आपको ना बताता तो क्या होता है। अगर मैं न बताता तो आप क्या करते। मैं तो आपके लिए आसानी बता रहा हूँ ना। मैं आपको आसान बना रहा हूँ कि भाई इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है तैयार कर लो, ठीक है। ओके, क्लास में कुछ समझ नहीं आया। अब क्या करूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ क्लास के साथ। तो आपका तकरीबन इसमें टाइम भी थोड़ा कम रहता है, 7 मिनट टाइम भी है। तो यहाँ यस, यस मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी बताया ना, 28 क्वेश्चन जो हैं, 28 क्वेश्चन ये नहीं है, ये इसका हेडिंग है। ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन है। कुछ ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इन सबको कर ले, ठीक है, वो इसको कर लें। अटेंडेंस तो मैं ले चुका हूँ एक बार, ठीक है। और आपका एक इसके बाद भी एक सेक्शन है जो थोड़ा सा वो करेंगे उसको, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का सेशन लेंगे बस। तो 1 घंटे का सेशन लेंगे, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वो है क्वेश्चंस है, उसको डायरेक्टली मैं एड्रेस करूँगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो तो ये जो आपके पास मतलब ये तकरीबन 3 क्वेश्चन है, उसको मैं शॉर्टली अभी आपको करवा देता हूँ। एक है आपके पास ये गिब्स डोहेम्स इक्वेशन है, एक 2.5 आइसोथर्म है, और तीसरा जो आपके पास है वो क्या नाम है, क्लेप्रॉन क्लासेस इक्वेशन है। तो ये 3 इक्वेशन है, इसको मैं फिर वो करवा देता हूँ आपको। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक की मैं काफ़ी है अभी 3 मेरे ख्याल में 3:30 पे फिर आप आ जाए। 3:30, हाँ 3 बज गए, तो 3:30 पे आ जाए, फिर दोबारा दोबारा फिर से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। अब है कोई 5 मिनट टाइम है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। चलो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। पेज PDF क्लास में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, ठीक है ना।
यस। तो 3:30 पे वापस आ जाए तो इंशाल्लाह आपका 1 घंटे का घंटा 1.5 घंटे का क्लास, अगर जितना भी हो सकता है वो क्लास हम ले लेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं और फिर वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।